many aspirants spend weeks, months, बहुत बारी वो लोग 6-6 महीने दे रहे होते हैं just to choose their optional। उसमें मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि होता क्या है ना कि लॉ ऑप्शनल में बच्चे ज्यादातर 90% स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर लॉ ऑप्शनल में सुना है कि नंबर कम आते हैं। Yeah, exactly। मैं बताता हूँ देखो होता क्या है। वो बच्चे फिर मैं जब उनसे काउंटर क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि हाउ आर यू प्रिपेयरिंग फॉर लॉ एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। एक आप समझ लीजिए वुमेन के लिए प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि एक मिस अगर आपका हुआ मानो प्रीलिम्स में आपको एक दूसरा साल देना पड़ेगा। घर का प्रेशर, शादी कर लो, इज अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। तो ये सब बहुत चीज चलती रहती है, ठीक है। कहीं पर किसी के लाइब्रेरी और होम स्टडी। लाइब्रेरी So like why when you have a room to study then why नहीं, you सी open व्हाट it? हैपेंस इज ना, वो सुबह से बैठा हुआ था, वो देखो शाम तक बैठा हुआ है, पढ़ रहा है। आपको मन भी करेगा ना चलो एक चाय पिया नहीं यार, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। So to begin with, we would love to know about your UPSC journey। I have actually lived in several states, and my schooling was there in almost like around 6 to 7 states throughout the country. Hello everyone, welcome to another insightful episode of Pluto Science. I am your host Khushi Jha, and today our guest is Advocate Amit Singh Rana sir. Sir is a PhD scholar and has appeared in UPSC service examination with a law optional. Sir specializes in constitutional law, international law, political science, and international relations, and is widely appreciated for his constitutional, conceptual clarity, and UPSC-oriented teaching approach. Thank you so much for joining us today. Thank you so much, Khushi, for giving me this opportunity for interacting with my students in such a very wonderful and new trending way, that is podcast, because this is the time for podcast and I'm very new to this. Yeah. Because this is the first time that I am interacting with all of you. Classes में तुम बातें करते हैं, but this is the first time interacting via podcast. Thank you so much for this. Welcome, sir. Sir, to begin with, we would love to know about your UPSC journey. Okay, so my UPSC journey is basically a mix of various subjects. So at the start, I have actually lived in several states, and my schooling was there in almost like around 6 to 7 states throughout the country. And so I have mix of experience for this diversity of this country. And later on, I graduated in political science honors from University of Delhi. Then I pursued my master's in political science. After that, I pursued my law. Law degree is basically this is actually a discipline in which I gradually developed interest after completing my bachelor's and postgraduate degree. Okay. So, and later on, like since the time I was there in college, my interest was there in UPSC examination, and since then I was very much tilted towards this exam. So my journey after like coming out of school is related with UPSC only. Okay. So that's nice. Sir, actually, you have written UPSC mains too. Yeah. How was your experience? So experience is like it is like at the start when I was in college, I was like preparing for UPSC examination with PSIR as optional. Okay. So at that time, what I saw was because like जैसे बाकी students के पास भी एक starting में choose करने के time पे they have a lot of options, okay, कि हम क्या लें optional, anthro लें, socio लें, ठीक है, pub-ed लें, PSIR लें, ठीक है। So बहुत सारे हमारे पास में जो है wide varieties है, because UPSC ने तो एक बहुत vast list of optional दी है, and these 500 marks are actually a very like big chunk, okay। देखो खुशी में एक बात बताता हूँ, होता क्या है ना, व्हाट माय एक्सपीरियंस इज कि आप जीएस में एक लिमिट तक जो है आप एक्सेल कर सकते हैं। आप कितना ही जो है आप मेहनत कर लें, कितनी पढ़ाई कर लें, बट एक जो सैचुरेशन पॉइंट है इन जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ये बहुत जल्दी आता है, where you can excel and where the opportunity for you to excel in the final list is where you come to optional subject. Okay, so choosing optional is a very I would say a very difficult thing, ठीक है। Exactly. Now, coming on to this law optional, अभी बात ही कर लेते हैं इसमें, क्योंकि बात कर ही रहे हैं ऑप्शनल की, मेरी जर्नी की, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो एक्चुअली होता क्या है कि एक तो लॉ ऑप्शनल इज अ ऑप्शनल जिसमें कि 80% रूल है कि द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी रिपीटेड।
इसमें क्या होता है, यही मात्र आई वुड से एक ऐसा ऑप्शनल है जिसमें कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत स्टैटिक और बहुत लिमिटेड एरियाज से क्वेश्चन आते हैं। बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की या किसी भी सब्जेक्ट की, उसमें बहुत दायरा है जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। और ये एज अ ऑप्शनल इज वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग एज इन आपको लॉ पहले ही आती है, बस यूपीएससी में आपको ये सीखना है, जहां तक मेरा मानना है, कि हाउ टू समराइज दोज लाइक वन लाइक नॉलेज का पूरा एक भंडार, हाउ टू समराइज दैट इन few words. Okay, this is the most difficult thing that we face as an aspirant, है ना? या सो सर मैंने इस एस्पिरेंट्स स्पेंड वीक्स मंथ्स, बहुत बारी वो लोग 6-6 महीने दे रहे होते हैं जस्ट टू चूज देयर ऑप्शनल, राइट? So like how the law optional would be easy for them if they are going to consider law optional as their optional subject for the UPSC. Or one more thing, like people think the UPSC law optional only can be chosen by those who have done graduation in law. Is it like true or just a इसमें myth? I would like to add one more thing. Yeah, Even yeah. the students who are pursuing law as their Yeah. degree in their college time, so उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा क्या होता है ना, कि वो भी ये बहुत ज्यादा स्केप्टिकल है इस बात को लेकर के कि लॉ ऑप्शनल चूज करें या ना करें, क्योंकि मैंने अब तक बहुत सारे बच्चों की जो है काउंसलिंग की है। I am personally, you know this very Yeah. well, that I am personally engaged with the students in their counseling and all. Yeah. तो उसमें मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि होता क्या है ना, कि लॉ ऑप्शनल में बच्चे ज्यादातर 90% स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर लॉ ऑप्शनल में सुना है कि नंबर कम आते हैं। Yeah, exactly. मैं बताता हूँ, देखो होता क्या है, वो बच्चे, फिर मैं जब उनसे काउंटर क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि हाउ आर यू प्रिपेयरिंग फॉर लॉ एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, उनका कहना ये है कि सर हमने अपने कॉलेज के, हमारे पास नोट्स हैं और कॉलेज के नोट्स से जो है हम अपने नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, और दुक्की वगैरह इधर उधर से जो है चूज करके, और ये डीयू की एक्चुअली जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मिलाकर के कुछ बुकलेट्स आती हैं जो कि रेफर करते आ रहे हैं बहुत लोग, तो उनसे हमने नोट्स बनाए हैं। देखो प्रॉब्लम इज दिस पॉइंट ओनली, यही आ जाती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। होता क्या है, यूपीएससी डिमांड्स अ वेरी डिफरेंट अप्रोच। Yeah. यूपीएससी ये कहता है कि हमने पिछले 20 साल में कुछ एरिया से क्वेश्चन पूछे हैं, हमें नहीं मतलब कि आपको कितना आता है। खुशी, यू आर राइटिंग मेंस, हु केयर्स कि तुम्हें कितना आता है? Exactly. माइट भी तुम सुप्रीम कोर्ट में एओआर हो, तुम इवन या तो तुमने जुडिशरी का भी एग्जाम क्लियर किया है, बट दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तुम्हें कितना आता है उससे मतलब नहीं। तुम्हारे और यूपीएससी में जो एग्जामिनर्स इवेल्युएट कर रहे हैं आपकी कॉपीज, उनके बीच का, तुम्हारे और उनके बीच का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दैट इज योर आंसर शीट। और बात यही आ जाती है कि तुम कैसे लिख रहे हो उस आंसर शीट में, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। और तुम क्या करते हो, कॉलेज वाला माइंडसेट, 4-5-6 पेजेस भर रहे हैं, वही माइंडसेट से आप अगर लिखोगे अपने आंसर को, सो इट इज वेरी रॉन्ग टू बेसिकली इवन थिंक ऑफ स्कोरिंग मोर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे मैंने खुद ही पर्सनली, यू कैन विजिट ऑन Plutus IAS वेब पेज ऑल्सो, in that you will go to optional category and there in one tab will be there law optional, and in law optional के सबसे नीचे आप जाएंगे तो वहां पर you will get one tab, रेड कलर का टैब होगा, ठीक है, वो आपको मिलेगा। वहां पर you will see कि every starting of every month मैं क्या करता हूँ, I post current affair magazines, 15-20 पेजेस की होती हैं, ज्यादा नहीं होती। और हर टॉपिक को कराने से पहले माय स्टूडेंट्स विल टेल यू बेटर कि हर टॉपिक को कराने से पहले व्हाट आई डू इज, उसमें आई गिव देम एनालिसिस, ठीक है, कि भाई ये टॉपिक है, इससे ये एरियाज पूछे गए हैं पिछले 20 साल में, ये तरीके हैं करने के। आपने केसेस को, जैसे एक बहुत फेमस केस है फॉर एग्जांपल नानावती केस, नानावती केस को आप क्राइम में भी कोट कर सकते हैं और आप जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के टॉपिक्स में भी कोट कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज राइट प्लेसमेंट ऑफ केसेस। कॉलेज में हम एक ही एग्जाम में 20 केस लिख रहे हैं, उसमें से 2-4 इधर उधर से भी हैं, चल जाता है। यहां पर यू हैव लिमिटेड टाइम, यू हैव लिमिटेड स्पेस एंड यू हैव लिमिटेड, आपका वो पूरा ये आप यूं समझ लो, जो एग्जाम की शीट्स है उसमें जो स्पेस है ना, वो भी आपका लिमिटेड है। आपको बहुत ध्यान से चूजन केसेस को ही पुट करना है और वही हम सिखाते हैं। This is what we do, and this distinguishes from the aspirants who score well in with law optional and who don't score well even after pursuing their law degrees from NLUs. Yeah. ठीक है, so this is the point. Sir, actually, I personally call UPSC optional as a game changer.
Okay, This so is like there is one question for the every aspirant from like our viewer. Managing general studies, current affair, and an optional subject together can be quite challenging, right? So, what practical strategy would you suggest to aspirants so they can maintain a healthy balance and without getting overwhelmed? although this is a question that I would more prefer to address individually, because Yeah. every individual student has specific things that they personally faces. Yeah. बिकॉज क्या होता है ना, एस्पिरेंट्स के माइंड में ये होता है हमने तो दो तीन टॉपर्स को देख लिया, और दो तीन टॉपर्स, तुम जानते ही कितने टॉपर्स को हो एवरी ईयर, लाइक अराउंड 700 800, इवन हमारे टाइम में तो थोड़ी ज्यादा और वैकेंसीज होती थी उस टाइम पर, तो 1200 भी, इवन 1200 1300 जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो क्लियर करते थे इस एग्जाम को. बट यू जस्ट नो 1 2 3. और स्टूडेंट्स बहुत क्या करते हैं कि उनका तो ये स्ट्रैटेजी थी, ठीक है, उन्होंने तो यहाँ से किया था वहां से किया था, और उसी को जो है समझ लेते हैं. सी, one major thing here in UPSC preparation is one size does not fit all policy को अपनाइए. Yeah. ठीक है, one policy can not be followed for every aspirant. ठीक है. दूसरी बात, अगर मैं थोड़ा जनरली फिर भी बताऊं तो देखो, आई वुड से कि ये 500 नंबर कुछ बहुत ज्यादा कम नहीं है. मतलब अगर मैं दो कंपार्टमेंट में रखूं जीएस, चारों जीएस पेपर एंड दीज 500 पेजेस, यहाँ क्या है कि यहाँ अगर एक आध क्वेश्चन में ऊपर नीचे हो रहा है तो यू विल बी एबल टू मैनेज. बट अगर यहाँ पर आपने एक क्वेश्चन गलत किया, यू विल बी आउट ऑफ द रेस. पॉइंट हियर इज कि आपको मैनेज कैसे करना है. आपके पास एक साल, 1 year इज देयर फॉर दिस एंटायर प्रिपरेशन. ओके, इवन एक आध दो महीना ऊपर नीचे. इन इनिशियल टाइम स्टार्टिंग आपको ऐसे करनी है कि फॉर एग्जांपल आप मई में एग्जाम की स्टार्टिंग की तैयारी कर रहे हैं, May 1 को. सो मई से लेकर के सितंबर तक का आपका टाइम होगा जब आप अपनी बेसिक किताबें करेंगे, आप एनसीईआरटीज करेंगे, बेसिक बुक्स करेंगे. सितंबर से लेकर के आपका स्टार्ट होगा आपका आंसर राइटिंग सेशंस. ठीक है, आपको मॉक्स लगाने स्टार्ट करने हैं, धीरे धीरे रिवीजन स्टार्ट करना है, और सितंबर से लेकर दिसंबर तक आपको अपने नोट्स बनाने हैं. ये वो सितंबर तक का टाइम है जहां तक आपको क्या करना है. अब देखो 6 महीने करीब करीब हमारा ऑप्शनल चलता है, तो मई से लेकर के आपका यही मैं मान के चलता हूँ कि भाई आपका नवंबर दिसंबर तक यू मस्ट बी ओवर विद योर ऑप्शनल. ओके, उसमें आपको क्या करना है, उसमें एवरी डे एटलीस्ट डिवोट 40 to 50 मिनट्स स्टार्टिंग में एक आध महीना, उसके बाद में जस्ट इंक्रीज द टाइम डेलिबरेटली, बिकॉज यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग ऑल्सो. बिकॉज अल्टीमेटली मैं तो अपने स्टूडेंट्स को जो है क्या करता हूँ कि फर्स्ट वीक से ही राइट, देयर इज नो एक्सेप्शन. लिखो भैया, कोई कुछ नहीं मिलना, बस लिखने से ही मिलना है जो मिलना है. ठीक है, मेक मिस्टेक्स, as many mistakes that as you can in the class itself rather than committing it in the exam hall. Okay, now the thing here is comes to the point कि इसके बाद क्या करना है. एक आइडियल एस्पिरेंट का मानना है कि मतलब एक आइडियल एस्पिरेंट के लिए मेरा ये पर्सनली मानना है कि फरवरी के बाद कुछ नया उठाने की जरूरत ना पड़े. ठीक है, 70% 60% भी सिलेबस कवर करके यू कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज अल्टीमेटली वो बहुत छोटा एरिया है जहां से 80% क्वेश्चंस आने हैं. ठीक है, तो अब देखो ऐसा होता है कि नाउ द पॉइंट कम्स टू कि आपको इस तैयारी को कैसे करना है. इसकी कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं होती है. ठीक है, रीच आउट टू मी. ओके, रीच आउट टू आवर इंस्टीट्यूट प्लूटस आईएएस, टॉक टू मी, मेरे पास आओ एक बार यहाँ पर. इफ यू विल कम देयर, योर करियर साइकोलॉजिस्ट विल इंटरेक्ट विद यू एंड दे विल गाइड यू. ठीक है, और मेरे साथ में आप बात कर सकते हैं. ठीक है, कम टू मी और हम बात करेंगे. ठीक है, इवन ऑन कॉल आई एम ऑल्सो अवेलेबल इन द आफ्टरनून टाइम. आफ्टरनून टाइम में आप कभी भी इंटरेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ कॉल पर. ठीक है, आप अपनी ईमेल आईडी ड्रॉप कर देना कमेंट सेक्शन में, यू विल गेट द डिटेल्स कि हम जो है कहाँ पर बात करें. वी विल टॉक. बट हाँ, ये है कि कोई स्टैंडर्ड बुक तो है नहीं. आई माई सेल्फ हैव कम आउट विद सर्टेन बुक्स. ठीक है, मैंने अपनी खुद की जो है बुक्स लिखी हैं स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर यूपीएससी लॉ ऑप्शनल. ठीक है, मैंने कोशिश की है उसमें कि आप सभी की यही वाली जो प्रॉब्लम है कि पढ़े कहाँ से, वो थोड़ी सॉल्व हो सके. आपको अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक के नोट चाहिए, ठीक है, तो जस्ट शेयर द लिस्ट विद मी, आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स आल्सो. ओके, सो दिस थिंग वी कैन एज अ गुड जेस्चर, क्योंकि हम भी कभी एस्पिरेंट थे, हमने भी वो दिन देखे हैं जब दिन डिप्रेशन के भी दिन, जो है अग्रेशन के भी दिन, जो है परेशानियों के. सो वी नो दिस वेरी वेल कि एक एस्पिरेंट क्या क्या फेस करते हैं. ठीक है, एक और बात आई वुड लाइक टू ऐड ऑन कि देखो होता क्या है ना कि ये तैयारी बहुत लंबी तैयारी है. इसमें कोई आप सभी की सर्कमस्टेंसेस अलग है. ठीक है, आप तो खुद ही रिलेट कर सकते हैं एज अ एक आप समझ लीजिए वुमेन के लिए प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि एक मिस अगर आपका हुआ मानो प्रीलिम्स में, आपको एक दूसरा साल देना पड़ेगा. घर का प्रेशर, शादी कर लो,
इज अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। तो ये सब बहुत चीज चलती रहती हैं, ठीक है। कहीं पर किसी के पेरेंट्स को रिटायरमेंट आ रहा है, ठीक है, आपको जो है कंट्रीब्यूट करना है घर में, दीज थिंग्स कम्स, ठीक है। नाउ इसमें आप परेशान भी होगे, बिकॉज एक पूरे डेढ़ साल 2 साल तक कोई भी लगातार मोटिवेटेड रहे, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, बिकॉज वी अल्टीमेटली आर ह्यूमंस। Yeah. ये तैयारी कभी ऐसे नहीं होती। दिस तैयारी इज नॉट लाइक दिस। दिस इज यू विल गो अप, you will fall as a human. If you are a human, not a god or beast, you will fall. Then it is how strongly you are rising again, how better you are performing the next Yeah. day. One thing I would like to add, अपने आप से कंपटीशन रखो, पीयर प्रेशर में नहीं इन्वॉल्व हो। आपको आज जो आप थे, आप कल उसमें प्लस चाहिए हमें, ठीक है। आज जो आप हो, कल कम से कम इवन एक छोटी सी कोई अगर बात आपने ऐड ऑन हुई है तो ऐड होनी चाहिए, ना कि सब्सट्रैक्ट होनी चाहिए, Yeah. ठीक है। तो यही है, मतलब चैलेंजेस जो है फेस करने पड़ते हैं स्टूडेंट्स को, एंड इन्हीं में आप जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। तो प्लीज फाइट बैक स्ट्रॉन्गर, है ना। सर वन मोर थिंग, जैसे आपने बोला कि मोटिवेटेड रहना पॉसिबल नहीं है, हाँ, राइट? हाँ। बिकॉज एग्जैक्टली दैट्स वी आर Human ह्यूमन, और वो tendency चीज़ें है ना। होती नहीं है। तो लाइक अगर कोई बच्चा प्यूटर साइंस ज्वाइन करता है, सो आप उसे कैसे गाइड करोगे, लाइक स्टार्टिंग से लेके इन तक विद टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप एंड एवरीथिंग? देखो, गाइड तो माय स्टूडेंट्स आर माय फ्रेंड्स, दिस इज माय पॉलिसी। इवन वी नो दैट। हाँ, सो माय स्टूडेंट्स आर माय फ्रेंड्स। आप एक बार देख सकते हैं, मैंने क्लास का एक्चुअली टाइम मेरा था एग्जैक्टली द टाइम व्हेन मेरी जो है यहाँ पर टाइम खत्म होता है, बट मैंने उसको थोड़ा सा पीछे करवाया। रीजन बीइंग कि मुझे जो है कम से कम 20-25 मिनट लगते हैं आफ्टर द क्लास इंटरेक्टिंग विद माय स्टूडेंट्स, ओह ओके। दैट्स सो द थिंग इज कि एज अ ह्यूमन बीइंग तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज स्टूडेंट जो है वो हमारे पास आए हैं एंड दे आर गिविंग सच प्रीशियस टाइम ऑफ देयर जर्नी टू अस Yeah. एंड बिलीविंग ऑन अस। या ट्रस्ट उन्होंने किया है हम पे, सो उसके बदले में हम उनको जितना पॉसिबल होता है उतना करते हैं उनके लिए। नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस, करंट अफेयर, ठीक है, कॉपी वैल्यूएशन से लेकर के हर चीजें जो है वी आर। और मेरे लिए बहुत अच्छी बात तब होती है व्हेन अ स्टूडेंट कम्स के साथ क्लास के बाद बात करनी है, एक पर्सनल इशू डिस्कस कर रहा है, कम टू अस, वी आर ऑलवेज देयर। हमने भी Yeah. फेस की है चीजें, है ना। हो सकता है आपको भी उतना एक्सपीरियंस नहीं हो, हमें शायद थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। वी आर ऑल्सो, एक वही बोलते हैं ना कि हम देखते हैं आप में अपना पास्ट, तो हमें पता है ना, क्या फेस किया है आपने। So this is the best thing when a UPSC aspirant plus an PhD holder becomes a UPSC guide. So वहाँ पे क्या होता है, हेल्प मिलती है, because the teacher already know what are the struggles जो हम फेस कर रहे होते हैं right now. तो यहाँ पे like according to you, और आपसे बात करके भी मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि जो भी बच्चा अभी यहाँ पे एनरोल होगा, या जो भी बच्चा अभी फिलहाल आपके साथ कनेक्टेड है, they are getting the perfect guidance from you, and thank you so much for that too. थैंक्स टू यू, ऐसे थैंक्स टू यू कि मुझे आपने जो है एक अपॉर्चुनिटी दी। थैंक्स टू you and Plutus IAS कि I got this opportunity to at least interact with my students. Okay. Thank you so much. Yeah. So, sir, before we move on, here are some fun segment questions. Okay. Okay. Rapid fire round. Yeah, kind of that. Okay. So, like coffee or tea, what would you prefer? Coffee. Coffee. Okay. So, like, sir, bare X or case laws? Case laws. Case definitely. laws. Yeah. Library or home study? Library. So, like, why? When you have a room to study, then why? नहीं, do you go see for what library? happens is ना, अरे यार उसको तो सुबह से बैठा हुआ था, वो देखो शाम तक बैठा हुआ है, पढ़ रहा है, आपको मन भी करेगा ना चलो एक कप चाय पिया, नहीं यार थोड़ा सा और पढ़ लेते हाँ, हैं। हाँ. एनवायरमेंट गेट्स क्रिएटेड, है ना। Okay. आजकल तो बच्चों ने, मैंने देखा है, वो बच्चे बताते हैं मुझे कि हमने ना स्टार्ट किया है, आई डोंट नो क्या वो नाम से क्या है, बट वो कहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे और सामने वी हैव आवर लैपटॉप एंड टैबलेट, उसमें गूगल मीटिंग पर एवरीवन देयर इज स्टडीइंग, और बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, दे आर आल्सो टर्निंग ऑन देयर कैमरा एंड स्टडीइंग। Motivation other. हाँ, तो मतलब इसीलिए थोड़ा एनवायरनमेंट है। Okay. Yes. So, like, sir, one more thing. One book you would recommend to every student? One book I would recommend, देखो, as a UPSC aspirant, Yeah. आपको although the best guide to you is previous year questions and constitution obviously, but the book that I would recommend to you is written by Jawaharlal Nehru, that is Discovery of India, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की किताब विंग्स ऑफ फायर। Thanks so far. ये दो किताबों में आपको, यू विल एंजॉय ऑल्सो रीडिंग दीज बुक्स एंड यू विल गेट टू नो अबाउट द पेन, द सफरिंग्स
in front of which your suffering will feel nothing to you, then you will see those sufferings, है ना? तो उसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है, so these two books I would recommend you to study. Okay. And sir, UPSC in one word. UPSC is in one word is unforgettable memories. Okay. Because during this preparation we create memories, Memories. है ना? So Yeah. this is what. Okay. So thank you so much, sir. Thank you so much. for Thank sharing you. such a valuable insight with us. I am sure our viewers have learned a lot about law optional answer writing and the real challenges of the UPSC journey. And to everyone, if you found this conversation helpful, don't forget to like, share, and subscribe to Plutus IAS. I am Khushi Jha, and this is Plutus IAS. Thank you for watching.